جب سے ایل جی کی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ سنبھال رہی ہے کہ بہت سارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. تو ہمارا شاید را مٹیریل ایزی ہوگا اور یہاں کی ان امپلائمنٹ پہ حد سے زیادہ کمی ہوگی. چاہے ڈیولپمنٹ ہے یا ایجوکیشن ہے، مگر جس پہ مجھے بات کرنی ہے میں کروں. گورنمنٹ ان کے پاس پلان لے کے جاتی تھی، ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، انہیں وہ پلان سمجھ میں نہیں آتی تھی. اسپورٹس کونسل ہر ڈسٹرکٹ میں ان ایسوسیشنز کو مانیٹر کرتا ہے. آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور. ناظرین، آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا ہے ضلع بارہمولہ کا. تو آئیے ناظرین یہاں کے عوام سے جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا یہاں کی ڈیولپمنٹ کو لے کر. بات کریں گے یہاں کی ایجوکیشن سیکٹر پر اور جانتے ہیں کیا خیالات رکھتے ہیں یہ وومن امپاورمنٹ کو لے کر. میرا پہلا سوال رہے گا ڈیولپمنٹ کو لے کر. جاننا چاہیں گے یہاں کے عوام سے کیا کچھ تبدیلی آئی ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر، کیا کچھ بدلاؤ آیا ہے پچھلے 3 سالوں میں جب سے ہمارے پاس ایل جی حکومت آئی ہے. دیکھیے، اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ کہ جب سے ایل جی کی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ سنبھال رہی ہے کہ بہت سارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ بہت سارا فنڈ جو ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آن گراؤنڈ لیول پہ لگ رہا ہے. اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں باڈیز کی، تو ہمارے پاس 50-60 لاکھ روپیہ آتا تھا سال کا، اور آج کی ڈیٹ میں ہمیں 5 کروڑ 6 کروڑ روپیہ جو ہے مل رہا ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو بارہمولہ کا جو نیا نقشہ بدلنے کی جو ہم نے ایک مہم چھیڑی ہے، اس میں بیوٹیفیکیشن ہو، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہمولہ میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک پارکنگ کا بھی ہم نے ایک پروپوزل رکھا تھا گورنمنٹ کے پاس، لیکن کچھ ایشوز جو آ رہے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، کیونکہ سب سے بڑا برننگ ایشو جو یہاں مین مارکیٹ کا رہا وہ کار پارکنگ کا رہا. 2020 پہ بھی ہم نے ایک کار پارکنگ کو انوگریٹ کروایا تھا لیفٹنٹ گورنر کی وجہ سے کی جانب سے، لیکن اس میں ایک ایشو آ گیا کہ وہاں پہ R&B کا جو لینڈ تھا وہ ڈسپیوٹ ہے. لیکن بہت جلد بارہمولہ کو ہم وہ پارکنگ جو ہے وہ تیار کر کے دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی ڈیولپمنٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ کی لائٹننگ ہو یا آپ نے آؤٹر اسپیس آف کریاپا پارک بھی دیکھا، کیونکہ ابھی جٹی برج کی بات ہوئی، وہ آلریڈی اس پہ بھی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، کیونکہ ٹینڈرنگ کا ایشو تھا وہ ورلڈ بینک نے اب لے لیا، اس کو وہ فائنانس کر رہے ہیں اس میں، اور ٹینڈرنگ کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ ٹیک اپ ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک چینج سی آ رہی ہے اور وہ چینج بہت پازیٹیو ہے. لیکن بارہمولہ کے لوگوں کو گلا ہوگا کہ ہم کنجسشن میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور جب دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں پر کی آبادی جو ہے پر اسکوائر فیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی تھنک 1 فٹ پر بھی ایک یہاں کی کیا کہتے ہیں آدمی کی گنجائش نہیں ہے اسپیس کی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا سرکار سے جہاں تک اولڈ ٹاؤن کا تعلق ہے اس کو ڈی کنجسٹ کر دیجئے اور تھوڑا سا باہر نکال کر لوگوں کو ہوا لینے کا موقع دے دیجئے، تاکہ ایک ایسا واتاورن پیدا ہو جائے. ہمارے بچے جو پریشان حال ہیں اور جن کو یہاں پر تفریح کا کوئی خاص سامان نہیں ہے، دور دراز بنایا ہے ٹاؤن سے ایک جگہ پر کیا کہتے ہیں کھیلنے کودنے کا جو یہ صوبیتا بنائی گئی ہے، لیکن ٹاؤن کے بچوں کو کھیل کود کا اتنا ابھی یہ نہیں ہے. حد سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھ رہی تھی. جس طرح یہاں پہ MC کام کر رہی ہے آج ڈور ٹو ڈور، وہ ہمارا جو ڈسٹ نکلتا ہے گھر سے ڈور ٹو ڈور گاڑی آتی ہے صبح، یہ تو اچھی بات ہے کیوں اس سے ہمارا ذہن بھی ڈیولپ ہوا. ہم بھی اپنی کالونی کو اب صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں ایک چیز اور لانے کی ضرورت ہے، وہ ہو گیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. جو بارہمولہ یہ ڈسٹ لیں گے تو لیں گے کہاں، ان کو بھی کہیں تو لینا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اہم ضرورت ہے یہاں پر. اس کے علاوہ میں اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سینٹرل گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ریلوے یہاں ہے، بانہل سے بارہمولہ تک ریلوے چل رہا ہے. اگر اس ریلوے میں اس ٹرین کے مارننگ میں ایک سپر فاسٹ ہوتی اور وہاں سے ایک سپر فاسٹ ہوتی ایوننگ میں، تاکہ ہمیں سہولت ہوتی. اور اس ریل کو آگے لینے کی ہمیں اہم ضرورت ہے جموں سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر اس ٹرین کے علاوہ اور ایک ٹرین چلتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں مال ٹرین، جس سے ہماری سروس آسان ہوگی، جہاں سے ہماری سپلائی، جس طرح ہمیں فروٹ کا یہاں پہ مسئلہ ہے. فروٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے گاڑی لیتی ہے 130 روپے پیٹی، ان کا فروٹ آرام سے تو وہ نہ ٹریفک جام میں پھنستے، نہ 3 دن وہ اس جموں روڈ پہ پھنستے، آرام سے ان کا فروٹ بھی پہنچتا اور شاید چیپ بھی ہوتا.
एक ब्रिज यहाँ पर जो है ये बनाने का इन्होंने मेरे ख्याल में पिछले 2 दहाइयों से अपने सर पर ये काम लिया था, हम जेटी ब्रिज बनाएंगे ताकि टाउन पर जो इस वक्त ट्रैफिक का बड़ा ज़बरदस्त दबाव है वो कम करके इसको हंदवारा बारामूला रोड के साथ मिलाएंगे ट्रैफिक को। लेकिन बार बार इसमें मालूम नहीं क्यों पोस्टपोनमेंट हो रहा है और नतीजा ये निकल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो पिछले 10-10 साल 20-20 साल के जो प्रोग्राम्स थे बारामूला में जो रुके पड़े थे, तो उनको हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो आज की डेट में कंप्लीट हो रहे हैं। उसी के साथ अगर हम देखें मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे बन रहा है, बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन रहा है यहाँ पे, तो उम्मीद करेंगे कि बारामूला की ओवरऑल डेवलपमेंट को लिहाज से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बारामूला एक बिछड़ा हुआ एक शहर पिछले 30 साल से रहा है, तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि हमारी कोशिश है यहाँ की लोगों की जो कोऑपरेशन है, क्योंकि जहाँ पे भी लोगों की कोऑपरेशन नहीं हो, अभी बात हुई कि यहाँ पे पीस इज़ द बेसिक सक्सेस ऑफ एनी डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो डेवलपमेंट का जो नारा LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो उसमें चीज़ रहती है कि फंडिंग का, तो फंडिंग उस लेवल पे हो रही है कि अब सिर्फ हमें काम आइडेंटिफाई करना। डेवलपमेंट मैं किसको बोल रहा हूँ, तब से डेवलपमेंट इसी का नाम है। मैं जिस शहर में अमन होगा उस शहर में ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद अगर देखा जाए, उससे पहले या जम्मू एंड कश्मीर के लोग या हम पथराव में लगते थे या प्रोटेस्टों में लगते थे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पैसा आता था वो लैप्स होता था। जाहिर सी बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम 80,000 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिए हैं पैकेज, वो पैसा हमें वापस गया है। वो क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब रही, वही पैसा हमारा कश्मीर का जम्मू में उनने यूटिलाइज किया उस चीज़ को। तो हम चाहते हैं कि आज हम नहीं लड़ते हैं ड्रेन लैंड बिजली, जिस तरह आज हम बोलते वो भुगतना पड़ता है हमें, क्योंकि जो पीछे सरकारों ने अगर 70 साल में ये काम किया होता शायद आज हमें नहीं लड़ना पड़ता। अगर देखा जाए, जब से पंचायत की बात करें या BDC DDC, हमने पहली बार देखा है BDC और DDC, यानी कि उससे पहले हमें सरपंच को देखते थे, लेकिन BDC DDC कहीं नाम नहीं था। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने BDC DDC का एक ये ज़रिया भी खोला, एक नौजवान को प्लेटफार्म मिला, उसको अपने कौम को खिदमत करने का मौका मिला। जहाँ तक डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो अगर हम सिर्फ टाउन की डेवलपमेंट को डेवलपमेंट समझें तो वाकई मेरे ख्याल से ये सही मानों में नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने टाउन की अगर डेवलपमेंट हो तो ये डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है कि जो उड़ी के उन पिछड़े हुए, बारामूला के उन पिछड़े हुए इलाकों की डेवलपमेंट भी हो, तो उसे हम बिल्कुल डेवलपमेंट के नज़र से देखेंगे। अगर हम बात करें बिल्कुल जब से LG एडमिनिस्ट्रेशन आई जम्मू कश्मीर में, तो तब से डेवलपमेंट वाकई में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ की जो फंड्स वगैरह थी वो ज़ाया हो रही थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर दिन ब दिन तरक्की की ओर, अब जम्मू कश्मीर दिन ब दिन खुशहाली की ओर तो बढ़ रहा है। लेकिन एक संगीन मसला यह है कि बारामूला के अंदर अगर टाउन में डेवलपमेंट हो रही है तो हमें उस पिछड़े हुए इलाके, उड़ी के उस गाँव परन पीला, उड़ी के उस गाँव खचादारी जहनपुरा या फिर उस लिम्बर का भी सोचना होगा जहाँ आज तक नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ आज तक रोड की सहूलियात नहीं है, क्योंकि गुज्जर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पर गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन है, जिनको अक्सर तौर पे अक्सर हुकूमतों, पहली हुकूमतों की तरफ से इग्नोर किया जा रहा था। अगर आप जो यहाँ मेरे भाई उमर ककरू साहब हैं या आबिद साहब हैं, इन लोगों ने कभी कभी अगर वहाँ पर भी नज़र दी होती तो अगर शेरी से लेकर कालेबन का रोड देखेंगे, जैसे भी हम नाले में चल रहे होते हैं, वहाँ की रोड जो बहुत ही खस्ता हाल है। अभी मेरे भाई ने कहा था, आशिक साहब ने कहा था कि एक एक ठेकेदार ने 10-10 ठेके ले रखे, अभी एक ठेका उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होता है, नेक्स्ट पर आए होते हैं। इसीलिए मैं LG हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारा रोड है शेरी से लेके कालीबंद, वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रिसेंटली जो यहाँ बारामूला में माई टाउन माई प्राइड का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, तकरीबन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, तकरीबन वी हैव फाइनलाइज्ड, हमारी जो काउंसिल है, हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर थे राघव लंकर जी, हमने एक प्रपोज़ल यहाँ पे किया है, कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपया जो है प्रोजेक्ट्स में, उसमें रिवर बैंक्स की ब्यूटिफिकेशन हो, उसमें ऑन हाईवे जो अलॉन्ग द हाईवे जो रोड्स है उसमें ब्यूटिफिकेशन हो, वो सारे प्लान्स जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को हम सबमिट करने वाले हैं विद इन कपल ऑफ डेज़। तो होपफुली कि
जो बारामूला की डेवलपमेंट जो रुकी पड़ी थी पिछले 10-20 साल से, तो उम्मीद करेंगे कि उस डेवलपमेंट को एक नई पेस मिलेगी। यहाँ पर जो पानी का मसला है, पानी उतना वेल ट्रीटेड नहीं है, पानी जहलम से लिया हुआ है। हम देखते हैं जानबाजपोरा में उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम दी है और कोई 3-4 साल से इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और बीमारियों का एहतमाल है। कॉर्पोरेटर आपका जो एक नज़रिया है वसी होगा बेशक, तो इस हवाले से आप मुझे बताइए कि पिछले 3 साल की बात करेंगे जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है, और अगर कंपेयर करते हैं पिछले 30 सालों को, तो क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप उस हुकूमत में और एलजी इंतज़ामिया की हुकूमत? नो डाउट कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे कोई भी लाइबिलिटी जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, कॉन्ट्रैक्टर्स की परेशानियां होती थी लाइबिलिटीज़, तो आज की डेट में काम क्यों हो रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि जितना पैसा एक डिपार्टमेंट के पास है तभी जाके वो टेंडराइज होता है, और आज की डेट में कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर लेना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जो एक कामयाबी है इस गवर्नमेंट की, जब काम तभी करो जब पैसा है। तो आज की डेट में पिछले 3 साल में कोई भी लाइबिलिटी आप क्रिएट नहीं देखेंगे। जो भी पिछले कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं दैट्स द ओल्ड लाइबिलिटीज़, 10-10 साल 20-20 साल की लाइबिलिटीज़ है, तो उसी पे जो है वो है। हम नहीं बोलते कि यहाँ पे सब काम हुए, बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन इनको करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे एलजी सरकार है, हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा, जिस तरह यहाँ पे आप पैसे तो पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन बदकिस्मती कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटों की भी लापरवाही है। यहाँ एक ठेकेदार ने 10-10 काम लिए हैं, लेकिन एक काम वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। ऐसे ठेकेदारों को उस ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए कि जब एक काम नहीं ठेकेदार कर सकता है, 10-10 काम लेता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी करप्शन है, कहीं ना कहीं कुछ अफसर करप्ट हैं जो एक ही ठेकेदार को पैसा दे के ये काम देते हैं, लेकिन आम लोग सफ़र करते हैं। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। यहाँ का जवान अभी गलत चीज़ों में मुलवस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखना चाहता है, हमारा नौजवान देखना चाहता है नया शहर, नया टाउन, नया डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह जम्मू में जाए तो रोशनी ही रोशनी है, यहाँ पे जाए तो अंधेरा है। क्यों? ये पिछली सरकार ने अंधेरा किया है, हम चाहते हैं इसको उजागर करना। रेलवे के हवाले से बात करें तो रेलवे, अगर बारामूला उड़ी रेलवे सर्विस होती, ट्रेन सर्विस चलती, तो बिल्कुल उससे काफ़ी फ़ायदा होता, खास करके उड़ी के लोगों का। अगर टूरिज़्म की बात करें, यहाँ हमारे पास कई एक ऐसे स्पॉट्स हैं जो टूरिज़्म के नक्शे पे, जिनको टूरिज़्म के नक्शे पे लाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर जहनपुरा के पीछे एक इलाका है जिसे बोसियाँ के नाम से जाना जाता है, अगर उसे टूरिज़्म के नक्शे में लाया जाता तो बिल्कुल वहाँ की जो गरीब पॉपुलेशन है उनके रोज़ी रोटी चल सकती। तो क्या वो बारामूला की डेवलपमेंट नहीं है? क्योंकि बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टाउन लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आज भी गांव का हाल सेम वैसा ही है कि जो पहले 90s में था। क्योंकि बिल्कुल डेवलपमेंट हुई है गांव में, लेकिन उस नज़रिए से डेवलपमेंट गांव में नहीं हुई है जो होनी चाहिए थे। गांव के स्कूलों की हालत देखिए, वहाँ बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं। गाँव की रोडें देखिए, वहाँ मैग्नेमाइज नहीं कर किया, वहाँ लाइट्स नहीं है, वहाँ कोई चीज़ नहीं है। गाँव के ट्रांसफार्मर देखिए, एक इलाके में 500-500 की घर की पॉपुलेशन है और वहाँ पर एक 60 kV का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया। क्या यही डेवलपमेंट है बारामूला की? क्या यही इंसाफ है उन लोगों के साथ जो गांव के पिछड़े हुए लोग हैं? तो मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मोदबाना गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल अगर डेवलपमेंट हो रही है, मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर है, लेकिन डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट के साथ साथ उन पिछड़े हुए इलाकों की, उन गाँव की डेवलपमेंट भी करें जिनकी आवाज़ उभारने वाला आगे कोई होता नहीं है, जिनका हुकूमतों में, जिनका आले एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में कोई होता नहीं है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए उड़ी तक रेल के हिसाब से। हम जब देख लेते हैं कि कंजस्टेड इस टाउन में से कौन सा रेल सा लाइन ले लेंगे और टाउन प्लानर आज तक का क्या किया है, और इसमें भी देखना पड़ेगा ज़रूर। और जहाँ तक आसपास के गाँव का ताल्लुक़ है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस बहुत अच्छी हो रही है, प्रेजेंस ऑफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वो है, अनसर्विटेबिलिटी बढ़ रही है, और शिक्षा में भी बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। और बच्चों का आना और जो लेफ्ट आउट्स वगैरह जो हैं उन पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड स्कूल अथॉरिटीज़ आर डूइंग दैट। यहाँ से जो दिल्ली से, यहाँ से हम एक कंपनी फैक्ट्री की बात करेंगे। कश्मीर में आज तक कोई इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं। इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी माचिस फैक्ट्री, वो भी बंद हो गई। क्यों? यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल महंगा आता है। अगर हमें ट्रेन चलती, माल सर्विस चलती, तो यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ख़त्म होती क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ईजी
और सस्ता भी आता है। मैं एक एग्जांपल कहूँ कि एक बार हमने शमा बनाने की कोशिश की यहाँ पे, उन दिनों 97 की बात है। 97 में जब हमने अपना प्रोडक्ट बनाया शमा, वो ₹1.05 में तैयार हुआ, जबकि मार्केट में वो सिर्फ ₹1 था। वजह यही है रॉ मटेरियल। अगर हमारी ट्रेन सर्विस चलती तो उसमें माल ट्रेन वो भी चलेगी, तो हमारा शायद रॉ मटेरियल ईजी होगा और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट पे हद से ज़्यादा कमी होगी। जो बात आपने की, क्योंकि मैंने आपको अभी मिसाल अपनी दी जिस डिपार्टमेंट के साथ मैं मुंसलिक रहा, अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला, हमारे पास IDMT में कुछ 40 लाख और UDF से 17 लाख रुपए आते थे। 60 लाख रुपए में हम पूरे बारामूला को लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसे निखारते। तो हमारे पास जो पैसा आया तब 2000 अर्बन लोकल बॉडीज़ में 2018 में जब इलेक्शन लड़े, क्योंकि मैं एज ए चेयरमैन था, काम कर रहा था, 2.5 साल मैंने काम किया, तो 5 करोड़ रुपये हमें आया 14 FC का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमारा रुका पड़ा था इलेक्टेड बॉडी न होने की वजह से। तो वो सारा पैसा जो है वो आज की डेट में यूटिलाइज हुआ। हमने नया ट्रांसपोर्ट लाया, हमने आज डोर टू डोर कलेक्शन हम दे रहे हैं लोगों को पूरे बारामूला में। तो उसी चीज़ का नतीजा है। हमारे पास यहाँ पे शक्कर 10 साल पुराना था, तो हमने शक्कर एक नया ख़रीदा, हमने यहाँ पे लोडर ख़रीदा, हमने ट्रांसपोर्टेशन ख़रीदे, हमने मार्केट की लाइट्स लगाई। तो ये एक इनिशिएटिव, और ये था कि फर्स्ट वेलकम स्टेप था कि हम जब ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जब हम एक मोहल्ले में, एक लेन में, एक कोचे में एक टाइल पाथ बनानी हो, लाइट देनी हो, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो अभी आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं वो स्ट्रीट लाइट्स का है। कुछ उसमें गवर्नमेंट का कुछ इशू रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, आई कांट से इन डेज, बट कुछ महीनों में हम बारामूला को कम से कम 50% लाइटिंग से बिल्कुल रोशन राज करेंगे। मगर एक चीज़ का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पानी का कमी है। पानी का कमी यहाँ नहीं है। पानी कश्मीर में बहुत है, समंदर है, मगर उस पानी को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे फॉलो करने की ज़रूरत है, हर हल्के में, हर मोहल्ले में, हर जगह में पहुंचाना चाहिए। या तो डिपार्टमेंट की कमी है, हालांकि हमारा सरकार सुपर फास्ट चल रहा है, सरकार सुपर फास्ट चल रहा है, अलबत्त हमारे डिपार्टमेंट में कमी है। हमारे सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है जो सरपंच को जानता है, सरपंच है, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा DC डिपार्टमेंट, हमारा अपना प्रोजेक्ट पंचायत। और इनको पता है सरपंच क्या है। बाकी जहां हम जाते हैं, जहां हम काम के लिए जाते हैं, ये सोचता है कि सरपंच आम आदमी। हाँ, हम तो आम आदमी है, मुसलमान है, इंसान है, मगर सिर्फ सरपंचों को, ये मैं इस चैनल की वसालत से आगे पहुंचाना चाहता हूं, डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट में इज्जत है सरपंच को। कि यहाँ हमारे एक फ्रूट मंडी ट्रांसफर बनी है 2000 में, उसमें कुछ दुकानें अलाट हुई हैं और कुछ दुकानें अभी गवर्नमेंट ज़मीन ले ली थी, लेकिन वो दुकानें अलाट नहीं कर रहे हैं। हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो बाकी जो ज़मीन उन्होंने ले ली है वो उनको अलाट की जाए, जिन्होंने वहाँ फार्म भर दिए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे बारामूला में हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट बहुत हुआ है, मतलब ये रास्ते बहुत बने हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ है कि यहाँ मतलब ट्रैफिक का बहुत दबाव है और रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। मतलब तहसील से पार पहुँचने में तकरीबन पौना घंटा लगता है। हमारी गुजारिश है कि इन तरफ इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। LG एडमिनिस्ट्रेशन में ही ये पॉसिबल हुआ कि यहाँ का जो फ्लाईओवर्स जो संग्रामा में आप देख रहे हैं, सब लोगों ने हमने देखा होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे डिसमेंटलिंग जो स्ट्रक्चर्स थे वो हो चुकी है। उसके साथ साथ जो 800 करोड़ का जो लागत से जो फोल लेनिंग का भी जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन्हीं पिछले साल में जो अलॉट भी हुआ है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ हम रोड कनेक्टिविटी जब तक नहीं रहेगी, यहाँ अभी मेरे कुछ भाइयों ने गाँव की बात की, देखिए जैसे एक शहर की इम्पोर्टेंस रहती है एक ज़िले में, उसी तरह एक गाँव की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि अल्टीमेटली हम देखें कि शहर में भी लोग जो है वो गाँव से ही रहने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट होना, क्योंकि हर एक आज अभी मेरे दूसरे भाई ने बोला कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है,
मुझे लगता है कि वो कोई गांव नहीं है जहाँ पे पंच नहीं है, जहाँ पे सरपंच नहीं है, जहाँ पे बीडीसी नहीं है, जहाँ पे डीडीसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गांव की तरक्की और शहर की तरक्की ये तब चीज़ें एक पॉसिबल है जब यहाँ पे पैसा होगा। जब पैसे के बगैर कोई भी चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। किसी ने बताया कि हमारे गांव में या हमारे टाउन में डेफिशिएंसी है वाटर की, और किसी भाई ने यहाँ पे उसका ये जवाब दिया कि कश्मीर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज़, चूँकि यहाँ पे वाटर बॉडीज़ की कमी नहीं है। मगर प्रॉब्लम फिर क्यों हो रही है? एक वजह मैं ये बताना चाहूँगा, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई पॉजिटिव मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे तो शायद हो सकता है कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव होगा कि वाटर डेफिशिएंसी को कम किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में या किसी टाउन से कोई वाटर बॉडी बह रही है, यानी कोल या थे वनान कशीर पे, तो जो उस वाटर बॉडी के बैंक्स पे जो लोग रह रहे हैं, जिनके मकान हैं उस वाटर बॉडी के बैंक पे, तो जो उन घरों से वेस्ट निकल आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सफाई कर रहे हैं या कोई सा भी वेस्ट सॉलिड या लिक्विड वेस्ट होगा, वो डायरेक्टली उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उसी कोल में। जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी की बात की तो ऑलरेडी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ डेडलाइंस मिली है, क्योंकि वो जो ब्रिज एक तैयार हो रहा है कनेक्टिंग बानहल व रामबन, तो उम्मीद करते हैं कि आज की डेडलाइन ये फाइनल डेडलाइन हो, और उम्मीद करेंगे कि नॉर्थ कश्मीर जो बारामुल्ला ज़िला है एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे रफ़ियाबाद में अगर हम जाए, कदरदजी एक जगह है, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। क्योंकि हमने आज की डेट में भी अगर हम देखें टूरिज़्म के लिहाज से तो हम देखते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मुगल गार्डन्स, तो यही जगहें हैं। तो कहीं ना कहीं पे नई जगहों का एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ बंगस की बात करें तो वहाँ पे 10 गुलमर्ग बन सकते हैं। अगर हम मैं आपको बताऊं कि यहाँ शीरी से ऊपर एक कनेक्टिंग रोड है, बाय ट्रैकिंग के ज़रिए जा सकते हैं। वो कनेक्टिंग हमारा संगरी बाला जो है वहाँ से अगर हम देखें तो इट्स ए वंडरफुल एडवेंचरस रोड। सरकार ने हमको बहुत पावर्स दिया है, बहुत से पावर्स दिया है, और काम भी हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। ये जो अभी मेरे भाइयों ने ये बात कहा है, किसी ने गलत नहीं कहा है, मगर हमारे बात करने को जो हम बात करते हैं तो आगे इसको वैल्यू नहीं है। अब मैं इस चैनल के वसालत से आगे पहुंचाना चाहता हूं कि जहां सरपंच जाए, जहां कोई ओहदेदार जाए डिपार्टमेंट, या तो गवर्नमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, मगर एक चीज़ हो रहा है, मेरे हल्के में भी बहुत काम हुआ है, जो 40 साल में नहीं हुआ वो हुआ, मगर एक चीज़ की कमी है मेरे हल्के में, पानी के लिए लोग मर रहा है, पानी के लिए लोग मर रहा है। जिस डिपार्टमेंट हम जो ये करेंगे वो करेंगे, PHA, एग्रीकल्चर, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं आज ये आगे पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि मेरे हल्के में जैसे मेरे हल्के में पानी की कमी है, आगे भी होगा। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा हम लोगों को पानी आता है, 24 घंटा सफ़र करना पड़ता हूँ। मैं आगे ये बात पहुँचा, हमको तुरन आनंद फानन में गुतियार में या तो दरियाब का पानी दे दो या आली पत्थर का पानी दे दो। मुझे लगता है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को आज की डेट में कुछ नई जगहें जो है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर जो है इट्स वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ 4 जगहों की वजह से इट्स नॉट पॉसिबल कि लोग जो है वही गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग और मुगल गार्डन्स को देखने आए, लेकिन कुछ और भी जगहें हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि रोड कनेक्टिविटी का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, बंगस में हमारे पास रोड नहीं था, तो आज की डेट में बंगस के बीच मैदान में गाड़ी जाती है, तो दिस इज़ अ डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि जब आज की डेट में गाड़ी जा सकती, क्या आज से 10 साल या 15 साल पहले या 20 साल पहले गाड़ी नहीं जा सकती थी? आप बंगस बाद में जाइए, पहले खुशबाग आ जाए, पहले हमारे मार्केट में आ जाए। बंगस तो बाद में देखेंगे ना, हम बुजुर्ग आदमी बंगस नहीं जा सकते, हमारी सांसें यहाँ फूलती है। एक 20 साल से एक पुल बनता है, अगर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मतलब सबसे पहले मैं एक बात करूँ कि अगर अल्लाह करे हमारी दुआ कबूल हो जाए कि ये गवर्नर राज कभी ख़त्म ही ना हो जाए, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खटपेंचू का राज ख़त्म हो जाए,
तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एलजी राज। तो अनफॉर्चुनेटली जो फॉर एग्जांपल वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो अब देख रहे हैं लोग कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने इसको डिस्पोज किया, उस वेस्ट को डिस्पोज किया उसी कुल में, उसी वाटर बॉडी में। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक दैट वाटर। दिस इज़ वन रीज़न कि हम फेस कर रहे हैं वाटर डेफिशिएंसी को मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी इस मंच के हवाले से, इस बात को आप हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब से तक पहुँचाए इस बात को कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म इसके लिए पॉजिटिव मैकेनिज़्म डेवलप हो जाए कि जो लोग इस बैंक पे रह रहे हैं उनके लिए वेस्ट डिस्पोज करने के लिए, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो या सॉलिड वेस्ट हो, उसको डिस्पोज करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, तो दैट विल बी बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, सो दैट वी विल बी एबल टू प्रिवेंट दिस वाटर बॉडी फॉर द फ्यूचर। बहुत सारा पैसा जो है आज की डेट में आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है। तो मैं इस चैनल रूबरू की जानिब से भी बताऊं कि एग्जीक्यूशन पार्ट में गवर्नमेंट को चाहिए कि टेंडरिंग में जहां एक महीना 15 दिन 20 दिन जो टेंडरिंग में रखते हैं, तो उसमें कोई रियायत करके, क्योंकि अल्टीमेटली टेंडरिंग 1 दिन की हो या 10 दिन की हो, टेंडर तो टेंडर डालना है। जितना टाइम एस्टिमेशन में नहीं लगता है उतना टेंडरिंग में लगता है। ठीक है, कहीं पे टेक्निकल सेंक्शन का इशू है कहीं पे, लेकिन जो हमारे काम है कोई भी 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। या अगर हम बात करें गाँव में 4 लाख 5 लाख के काम है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ही एक टेक्निकल सेंक्शन की पावर है, या 10 लाख का काम होगा तो ऐसी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो टेक्निकल सेंक्शन दे सकता है। तो इस प्रोग्राम की जानिब से मैं ये समझूंगा कि अगर एग्जीक्यूशन पार्ट में गवर्नमेंट की जानिब से कुछ रियायत मिले कि टाइम जो उनके पास रहता है टेंडरिंग का उसमें कमी की जाए। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।